Assalamu alaikum. Today with a new lecture and a new lesson I am here. Our today's lecture, the today's lesson is about personality differences. Are some major points regarding to give a successful interview. If you are getting an admission in schools, if you are parents of students or children to whom you are going to get the admission for, are you acquiring a job, what attributes your personalities must have, and which points you have to set when you ask for a question. In interviews, generally a question is asked that tell us about your personality and describe yourself. So instead of going to give the all attributes of your personality, you have to give a short answer in form of words. And these words are the personality traits: extrovert, introvert, and ambivert. Now, what are these terms and how we can use these terms? First of all, introvert. Secondly, extrovert. And thirdly, ambivert. Now, what are their meanings and how they describe the personality? The very first thing we are going to describe or discuss is introvert. Our society is divided into three categories. Some people may be introvert, some people may be extrovert, and some be ambivert. Introverts are those people who are not shy at all, but they are less confident. Most of people among us, when they are asked for a presentation in the class, or they are asked to give a presentation in their official level in their offices, they hesitate because they are not shy. They are not shy, but they have some confusions in their mind that maybe in that point I get shivering, or maybe my words will not support me, or I will give some wrong estimation or wrong assumption about that project or that presentation. This is your lack of confidence. When you are less confident to speak to other people, it doesn't mean that you are alone and aloof. Again, not alone or aloof, but are less social. They are not social butterflies. They are not get happy when they are socializing with people, but it doesn't mean they are alone and aloof. No, they make friends, but limited, particular, very choosy about their friends, to whom they put their confidence, to whom they share their secrets, or to whom they can trust. तो इंट्रोवर्ट हमारे पास वो पर्सनैलिटीज हैं जो शाय तो नहीं है, लेकिन दे आर लेस कॉन्फिडेंट.
अगरचा वो अलोन एंड अलूफ तो नहीं है, तन्हाई पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सोशल भी नहीं है। अगरचा फ्रेंड्स तो बनाते हैं बट सर्कल बहुत लिमिटेड है। Again, another thing, in physical activities, they get tired soon. In activities, they are not uh, positively involved, or they are less involved in activities because they tired soon. They want to get some rest, and they are very good readers. Good readers, good listeners, but not good speakers. ये चैटर बॉक्स नहीं है, बहुत बातूनी नहीं है। They are good readers, they are fond of book, very bookish people. They are good listeners, अगले को बहुत गौर से सुनते हैं, लेक्चर्स को बहुत गौर से सुनते हैं, but not good speakers. लेकिन उसको अपने आइडियाज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते थ्रू देयर वर्ड्स। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, इन स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, कि उनको आंसर आते हैं बट दे आर हेजिटेट और दे आर रिलक्टेंट टू रेज देयर हैंड्स टू गिव द आंसर। और अगर बाय चांस हैंड रेज कर भी लें तो दे आर रिलक्टेंट टू गिव द प्रॉपर आंसर। कहीं ज़बान लड़खड़ आ जाती है, कहीं अल्फाज साथ नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक खौफ है कि कहीं मेरे बोलने वाले लफ्ज़ गलत तो नहीं। अगरचा एग्जाम्स में वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं बट दे आर नॉट गुड स्पीकर्स एट ऑल इन क्लास। Same with the case of some people that they are gold medalists and they are toppers, but they can't deliver the lectures properly. वो students को पढ़ा नहीं पाते because they are not good speakers at all. They are good listeners, they are good writers. इनकी एक और खूबी ये है कि they are good writers, very creative, and superb imaginative. इमेजिनेशन बहुत शार्प होती है, इसलिए बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। इनकी क्रिएटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ यू गिव देम अ बुक, अ पेन एंड अ डेस्क एंड अ चेयर, दे कैन सिट फुली द फुल डे एंड दे कैन राइट इन अ वेरी गुड मैनर, अगर इनको अकेले बिठा दिया जाए। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंट्रोवर्ट। अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ कोई पूछता है कि डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी एंड यू हैव ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन यू, you can easily say without saying that I am less confident or I am hesitant or I am reluctant. ये words तो आपने बोलने ही नहीं है because it put a very bad impact on your personality. You can say that rather I am a bit introvert. फुली इंट्रोवर्ट भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि चूँकि इंट्रोवर्ट लोग फिजिकली जो है एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो है इस आपके इंटरव्यू में इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं डाल सकता। बट यू कैन से दैट आई एम अ बिट इंट्रोवर्ट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सट्रोवर्ट। Extrovert are those people extrovert
They are those people who are full of life, energetic, socially involved, love to be around people, means social. Love to enjoy music, love to enjoy parties, music. They are chatterboxes, they are good speakers. Uh, Confident, impulsive, abrupt, love to talk with everyone, makes lots of friends. They are, every time they just want to discuss their own ideas, enjoy in discussing or expressing their thoughts. Now, who are extroverts? Extroverts are those people who are full of life, means that every single moment of life they just want to enjoy their life fully. They are energetic, they are good sportsmen, because their energy level is much greater than introverts. As introverts were very creative, they were good writers. On the contrary, extroverts are good sportsmen. They love to be around the people. They are very social. They are social butterflies who enjoy the company of everyone. Everyone. They just want to make friendship with everyone without knowing or with knowing them. They are good speakers. They are confident. They are impulsive, but impulsive means कि आपने बस बगैर सोचे समझे जो भी माइंड में आया, आप इतने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं कि आपको ये नहीं अंदाज़ा हुआ कि वेदर ये बात गलत है, ये बात सही है, आपने उसको बोल दिया. सो दे आर इम्पल्सिव, जो इनका कभी पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, बट मोस्टली इनको ट्रबल में भी लाता है. दे आर अब्रप्ट, अगेन इम्पल्सिव है, अचानक बोलेंगे, सोचे समझे बगैर बोलेंगे, जो काम करेंगे वो भी अचानक करेंगे, विदाउट एनी प्लान करेंगे. दे मेक्स लॉट्स ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं. हमेशा इनका दिल करता है हम लोगों में घिरे रहें, हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते रहें, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते रहें. ये बहुत अच्छे बिल्डर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास आइडियाज़ बहुत शार्प हैं. और ये बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं. पब्लिक स्पीकर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनको बात करने का हुनर बहुत ज़्यादा आता है. तो अगर आप रादर आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं और आप अपने इंटरव्यू में कहते हैं आई एम एन एक्सट्रोवर्ट,
means that it is leaving a good impact. क्योंकि बिजनेस में, जॉब्स के अंदर आपको सोशल भी होना है, आपको बोलना भी है, आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है, तो एक्सट्रोवर्ट जो है वो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है. सो आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे लोग नहीं होते. इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छे लोग होते हैं. अगर दुनिया में इंट्रोवर्ट्स ना होते तो हमें इतने ग्रेट पोइट, इतने ग्रेट राइटर्स, इतने ग्रेट थिंकर्स, इतने ग्रेट टीचर्स ना मिलते. तो इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है. अल्लाह ताला ने इंसान की जो कैटेगराइजेशन की है, तो हर कैटेगरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, और एक ये भी चीज़ है कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है. समटाइम्स यू सी दैट यू आर इंट्रोवर्ट एंड समटाइम्स यू सी दैट नो, आई हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एज वेल. इट मीन्स दैट आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. तो दिस इज एम्बिवर्ट. The last point, ambivert. Now, who are ambiverts and what are ambiverts? Ambiverts are those people who have both the shades. They have both the shades of extrovert and introvert, and both these things make ambivert. जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों शेड्स मिल जाते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के, तो एम्बिवर्ट बनते हैं. मीन्स ये वो लोग हैं जिनके अंदर ये दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं. They are those people who sometimes just want to relax with their own self. They are good monologuers. ये अच्छे मोनोलॉगर्स हैं, खुद से बात करने वाले, खुद कलाम. इनकी खुद कलामी जो है, एज परवीन शाकिर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोलॉगर. खुद कलामी करने वाले, ये अपने आप से बात करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं, बट दे आर गुड एंड टॉकिंग with others as well. दूसरों से बात करने में भी बहुत खुशी महसूस करते हैं. समटाइम्स इनका जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत कम है, सोशली मिक्सअप होना नहीं जाते, लेकिन कभी कभार जहाँ जाते हैं बहुत सारे दोस्त बनाकर आ जाते हैं. समटाइम्स ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में टायर्ड हो जाते हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए. ये अपनी पर्सनालिटी को मॉडिफाई करते हैं, modify their personality according to the situation. हालात के, सिचुएशंस के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को ये मोल्ड एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. मीन्स जहाँ इनको लगता है कि नाउ दिस एक्टिविटी, दिस पार्टी इज़ पार्टी ऑफ इंट्रोवर्ट्स, कोई गज़ल सुनने के लिए आया हुआ है, तो वो उसके साथ भी आराम से बैठ जाएंगे, इंजॉय करेंगे. कहीं पे ये जाते हैं तो ये देखते हैं कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, तो ये वहाँ पे जाके भी उन लोगों के साथ जो एक्सट्रोवर्ट्स की खूबी होती है, ये उसके साथ भी वैसे ही इंजॉय करते हैं. Means they are the combination and mixture of both. They are sometimes just monologuers. एक वो भी हैं who wants or who feels happy to talk in the mirror, to talk with themselves.
जैसे हम खुद से बात करें तो हमारी बात बहुत ही स्मूथ स्पॉन्टेनियस होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी उसमें। इसका मीन्स है कि वी आर इंट्रोवर्ट। और जब हम वही बात किसी और तक कन्वे करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तो हम वैसे नहीं कर पाते जैसे हम खुद से बात कर रहे थे। तो इट मीन्स वी आर एंटी एक्सट्रोवर्ट और वी आर इंट्रोवर्ट। लेकिन जब कभी हम अपने आइडियाज अपने आप भी अपने साथ भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छे से बोलते हैं, वी आर फीलिंग इंजॉय और वी आर वेरी इमोशनल। एक और चीज़ कि इंट्रोवर्ट्स बहुत इमोशनल होते हैं, तो एम्बिवर्ट समटाइम बहुत इमोशनल है और समटाइम बहुत इम्पल्सिव है। इमोशनल लोग बहुत सोच समझ के मतलब अपने इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले वो असाइड हो जाते हैं, खुद से मोनोलॉग करते हैं, उसके बाद जो है वो लोगों से भी इस बात का इजहार करते हैं। इम्पल्सिव लोग उसी वक्त बोलते हैं, सोचते समझते नहीं हैं, थॉटफुल बहुत ज़्यादा मतलब काम करने से पहले बहुत थॉटफुल नहीं होते। इनकी जहनी अप्रोच जो है वो एक चिड़िया की तरह है, जो अभी यहाँ है तो अभी वहाँ है। मीन्स के बहुत सडन फैसले करते हैं। तो समटाइम हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो हम बहुत ही सोच समझ के विद फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, और कुछ चीज़ें हम बहुत इम्पल्सिवली कर लेते हैं कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, इतनी बहुत सारी चीज़ों को हम टैकल नहीं कर सकते हैं। बट चूँकि हम कमिटमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमें वो सब के सब चीज़ें पूरी करनी है। So today, whatever we discussed in regarding to our personality traits, कि सोसाइटी कितने लोगों में डिवाइड है, प्लस अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, तो डिसाइड या on the contrary you are saying that I am very creative, I am very emotional, and I am very uh, full of life, or I'm chatterbox or this and that. Just use that I am either introvert or I'm extrovert, or I'm the combination of both as I'm ambivert. So this will leave a good impact on your life. दूसरा, अगर कोई आपसे पूछता है कि the difference between introvert, extrovert and ambivert, तो फ़ौरन आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये हमारी पर्सनैलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। कि पर्सनैलिटी के लिए हमारे कुछ वो हैं वर्ड्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। थर्डली ये कि इन अल्फाज का अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्पोकन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, और अगर आप अपने रिटन में यूज़ करते हैं तो ये आपके रिटन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आई गेस you get some fruitful information from today's lecture, और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करेंगे ताकि आप मज़ीद इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।